आपका आवाज नहीं आ रहा प्रवीण सर। जी म्यूट हो गया था। थैंक यू। देखो, ये रहते संगत का असर। जी सर। A very good afternoon to our master, Dr. Samuel Henneman sir, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected IHF family members और हमारे सभी respected mentors। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे respected mentor, respected and senior mentor डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर ने अपना बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है। और हमेशा ही उनके केसेस से उनकी वीसी जब भी रहती है तो हमको बहुत नया सीखने को मिलता है। तो वेलकम करते हैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। जी जी सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड मैं सर की आफ्टरनून मैम। कर लेती हूँ। यस, जी थैंक यू। जी। This is the case of 20 years young male student. He is suffering from fungal infection of the skin on the both buttocks, groin, and pubic region since 2 years. This is level number 1. He has been under allopathic treatment, but the lesions appearing after stoppage of the medication. He is 5 feet 9 inches tall, fair complexion, and a bit effeminate in behavior. He has pierced his ears and wears band around his wrists. He evades eyes while talking. Based on this observation, I prescribed some medicines, but it did not work well. So I decided to take the case in detail. When he came for the case taking, he is in a very casual mood, playing with the mobile. I asked him if he has done with the mobile, then we can start. I explained him about the procedure of the case taking. This is the live case taking in my group, where we generally take one live case in a week. Doctor, tell me about your problem. Patient, my skin is peeling and bleeding. Red skin and rashes, itching. First it appeared behind the ears, then underarms, then waist, now on the buttocks and groin. This is 2A level. Doctor, what does it itch more? Patient, it is better when I am in pants. It starts when I took off. Level 2B. Doctor, in night? Patient, yes. When I woke up in the morning, I found scales in my bedsheet. Level 2B. How does it subsides? Patient, after applications of ointment, but you haven't given me anything. It is oozing, so now I can't apply oil also. It burns when I apply powder. Level 2A. Doctor, how do you feel when it starts itching? Patient, it is only for limited area. I feel nothing. Doctor, describe this itching. Patient, it is never outside of home. When I change my pen, it appears. I can't sit properly due to the exfoliating skin like on two-wheeler or sit. Level 2B. Doctor, do you sleep sound or it gets disturbed due to the itching? Patient, no, I have sound sleep. I don't remember if I woke up due to the itching. It it itches before the sleep only. Lots of scaling and then burning. Sometimes a piece of skin comes while scratching. It itches more where skin is peeling off. Level 2B. Doctor, do you feel better after scratching? Patient, no. Itching, scaling, oozing, and bleeding. Doctor, what are changes you are experiencing after this skin problem? Patient, I can't
walk too long. First, pants used to be stick to the nets after sitting. Now oozing is less, but it pains while walking as pants causes the friction. Level 2C. Doctor, does your pants get stiff? Patient, yes. Cloth gets stiff and also color changes. If I wear kurta, then it will get stiffened and discolorated. Level 2C. Doctor, what are the things that cause anxiety and restlessness? As I am observing, doctor की observation है, as I am observing the restlessness in his posture. This is एक the मिनट bypass मैडम, technique. एक मिनट. यहाँ तक पेशेंट ने जो डिस्क्राइब किया है वो अपना फिजिकल पर्टिकुलर कंप्लेंट डिस्क्राइब किया है, और टू प्रिस्क्राइब वी मस्ट नो द स्टेट ऑफ अ पेशेंट, बट वहाँ पे वो आगे जा नहीं रहा था. सो यहाँ पे हमको वी हैव टू आस्क हिम अबाउट द नेचर और जनरल स्ट्रेस इन हिज लाइफ, अबाउट हिज रूटीन लाइफ, डेली लाइफ, so that we can see the inner picture. This is called as bypass method. Continue, madam. This is the bypass technique as patient is going behind fact, is not going behind fact level. That is level 2. Patient, nothing. I just feel giddy when I stand up from sitting position. Doctor, tell me about your stressful areas. Patient, nothing. Only studying. Now I will get holidays and immediately exam will be able to finish. Will I be able to finish my study? This is nothing is a denial mode. Means he is in compensated state. He himself is not aware of his state. ये डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन थी. डॉक्टर, what are your ideas for the career? Patient, engineering. I am in the second year of the computer engineering. Doctor, do you like your field? Patient, laughing. See, seeing the current situation, I think I should opt for the business. He laughed and got relaxed. He leaned back and loosened his collar, raised his face on the palm. Glow sprayed on his face. It is as if I touched his sensitive area. Now I am confident whatever he will speak is his inner core, which he was not able to take out or rather rejecting. This is एक the मिनट. shadow part of When patient comes to you, he poses certain gesture like this, or sitting like this many times, and you encounter that patient is not progressing well, or patient is not going to the deeper level. At this time, if you ask some intelligent question where he becomes at ease, and when it becomes at ease, his posture from this to changes like this, or rather he can sit like this, or he can open his cross legs, he leans backwards. This is the sign that you have touched his core area. And now up to this dialogue you will hear nothing, but after this you will hear all positive things required for the case taking. Continue, madam. this is the shadow part or non-human or the other song. I'm doing engineering, paying huge. If I don't get desired result, that is actually returns or return on investment, should I change the field? Doctor, means patient. Our teachers are telling us to find out your career in the entrepreneurship. It is blow on the assumptions. He is experiencing something unusual, which he cannot digest or accommodate. This is the crux on his state. Doctor, why didn't they tell this during the taking admission? Patient, first they will admit us, and after first year, they talk like this. Now we can't leave the course, and laughing. Doctor, what do you feel about your teachers, college, and the field? Patient, everyone is earning well.
Why should they bother about this? Doctor. Means you feel there is no proper return on investment? Patient. Yes. No surety of the future. Now, this shows his concerns like money, security, career, etc. Doctor. Right एक now, मिनट मैडम, this is the talking of column 4. It may be the column 4 of a plant kingdom, it may be the column 4 of animal kingdom where the lack remedies are there, or it may be the talking of a row 4 of a mineral kingdom where Kali, calcareous, scandium, vanadium, gallium, arsenic all are situated. Continue, madam. Doctor, right now, how do you feel about life, career, degree? Patient, I'm trying new option also. Doctor, what do you feel about yourself? Patient, as if study is limited only to the exams, not on what is required outside for job. Nothing progressively happening in my life. I can't explore new areas. Practical experience is lacking. We don't have time to go for other new learnings. Means he is not able to cope up with the demands of the time. Doctor, what do you feel inside your body? Patient, as if I'm lagging behind. This is the sensation of the case. I trying hard, but what I see others, I feel I'm lagging behind. They know so much, I know nothing. This is the lack sensation. I'm lacking in something. There's incompleteness in me. This is एक the मिनट मैडम, language of the when patient says मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ चाहिए या कुछ मिलेगा, then I will become complete. This is the language of a structure pointing towards mineral kingdom. Now we are sure that we have to find the remedy which belongs to the mineral kingdom and row 4. Continue, madam. this is the language of the structure. I am imperfect. Doctor, please explain me this in detail. Patient, others are learning so much as they are in private colleges. They are getting exposure to modern utilities. They have joined new courses, learning new things. He explained me some issues of the colleges and course. I thought the university affiliated college will have good academic, but the private colleges means deemed universities are having better perspective. I feel FOMO. FOMO means fear of missing out. Others are going ahead of me. I'm lagging behind. No inter-college course competition, practical training or projects. Only what university has designed. This shows his dependency on the group. If he is not compatible with this group, he is missing. Doctor, 8 minutes. So he is not complaining about his personal things. Those students who are in his colleges, in his college, are lacking behind because there is lack of practical things. Means he is talking about the group. What is true for him is true for the group. Are you getting me? So he is dependent upon the group, and if everybody gets that practical knowledge, he is also able to get that practical knowledge. This shows us column 1 theme. Continue, madam. That is Kali. if he is not compatible, this shows his dependency on the group. If he is not compatible with the group, he is missing. Doctor, what is the sensation when you see so much activities going outside and you are stuck to the academic, which is nowadays almost outdated? Patient, I have kept these thoughts aside,
But when I push myself for the self-study, I think nothing will be changed for me. I am also avoiding speaking to the colleagues of the other colleges. He feels unworthy of himself, disgraced. Doctor, when you come to know that other friends Okay. have tremendous knowledge, 1 minute, madam. So why is feeling disgrace? Because if he comes out of the college, there will be no better prospects in comparison with other college students or other group. So he is thinking that his investment, which in the form of fees, in the form of physical effort, in the form of study, are in vain. So he is feeling disgrace. Disgraced is typically represented by which element? Can anybody tell? Sulfur, sir, sulfur. Yes, correct. Continue, madam. when you come to know that other friends have tremendous knowledge, tools, and you are stuck in the old academic, what is the exact sensation you will feel? Patient, fear, palpitation, anxiety. I'll spend my day in anxiety. I will not study. Rather, I will keep brooding about same thoughts, overthinking, trying and resign. This cycle goes on, and this is ringwormism, which is his pathology. Doctor, What does it mean by ringworm miasm? Can anybody explain? सर ही कीप्स ट्राइंग एंड देन अगेन गिव्स अप. फॉर एग्जांपल जो ओबीस पर्सन होता है सर, ओबीस पर्सन बहुत अपना वेट लूज करने की कोशिश करता है. जब उसका कम होता है तो वापस से वो कोशिश करेगा, बढ़ता है तो वापस से वो कम करता है और वापस से स्लो हो जाता है. तो सर रिंगवर्म माइजम का वो है. तो आपने शंकर सर की बुक पढ़ी है? हाँ भरत जी. यस सर. सर हाँ, उसी में एग्जाम्पल दिया है ना ये. यस सर. अच्छा, मैंने भी तो पढ़ी है फिर. ओके, कंटिन्यू मैडम. सो ringworm miasm is that I will try for some time, then I will become hopeless, I will accept the situation, again I will sit back calm, and then again then I have to go. So this keeping trying and accepting is the theme of ringworm miasm, which is his pathology. Continue, madam. what is the exact sensation inside your body? Frightened. I will not speak. Moved off. I'll prefer to live alone. I will not feel anything if I am with the college buddies. But when you interact with the large group that is from other college, then you feel all this. He feels disgraced when he is in the group. Doctor, what dream do you get? Patient, I don't remember. Doctor, generally what subject you see in your dreams? Patient, college, friends, assignments. Doctor, see this picture and tell me whatever comes to you. That is the picture of woman 1. Patient, frightened. Tell me what are the things which are fearful in general. Patient, thinking about future, career, again career and task. Doctor, tell me about your childhood fears. 1 minute. So when we are showing woman 1 picture, whatever he is describing about woman 1 is not about actually woman 1, but it is about himself only. Here also he described about career and task and money. So we can confirm that our track is correct and we are getting to 100% sure about the remedy. Continue, madam. Tell me about your childhood fears. Patient, friends should not leave me. Our group, bond, family should remain intact. Dependency on the group. Doctor, what do you mean by the word bond? Patient, relationship must be stable. That is the language of kingdom. We shifted few years back. Which kingdom? Which kingdom? Sorry, सर madam. मिनरल किंगडम. सर So सर मैं एक again we सेकंड के लिए confirm. ब्रेक लेती हूँ. हाँ. So here we are confirming again and again that the patient belongs to the mineral kingdom. So there is, in this type of case taking, there is no magic. It is
simply applying what is been written in the book, what you see in the patient. Okay, so let's wait, madam return. Yes, sir. What dreams do you get? नहीं नहीं, कौन सा, कहाँ पे Childhood, थी? childhood. हाँ, वुमेन 1 के बाद. Friends should not leave me, want relationship. I miss my childhood friends. Of course, I have new friends here, but still group, career, etc. Like I miss my junior college friends. I don't like parting away from my friends. Now there are the hand gesture, opening of thumb and first finger. Doctor, suppose you and me are the friends from the school days. I opted for the arts course and you have opted for the science. Then what do you feel? Patient. I will feel I will keep brooding about the old days and memories. This is the old age according to the PEM. Doctor, what does friend mean to you? Patient, I share everything with friends. I will not live friendless life. I can't share things. I'll keep brooding. This childlike dependency. This is the childlike dependency. Doctor, tell me about your hobbies. Liking, disliking, craving, aversion, patient. I want to focus on myself. I want to join gym, but I'm unable to take initiative. I just keep thinking, no action, only postponing and procrastination. Doctor, okay. Thank you. End of the case. Thank you, sir. Thank you, madam, for reading the case. So Thank you. what must be the remedy? अभी तो काली सल्फ लग रही है, पहले मुझे काली सल्फी है सर, ब्रोमियम और वो काली लग सल्फी लग रही है. काली सल्फ. बोरिक से पढ़िए स्किन वाला सेक्शन. सर ये रो 4 में जैसे टास्क और टास्क है, सिक्योरिटी सब और सर स्टार्टिंग में इट्स इन द बिगिनिंग बिकॉज चाइल्ड लाइक स्टेट है, इनिशिएटिव भी नहीं ले सकता, तो स्टार्टिंग की लाइन में सर काली आएगी, ऊपर से पेल्पिटेशंस और आपने ये चीजें बताई वो भी है, और सर रिंगवॉर्म माइजा में तो काली सेल्फ होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली. सर मैं पढ़ता हूँ स्किन का काली सेल्फ. सोरियासिस इन ब्रैकेट आर्सेनिक टाइफॉइड ब्रैकेट कंप्लीट एक्जिमा बर्निंग इचिंग पेपुलर इरप्शंस नेटल रैश पॉलीपाई इपिथेलियोमा सिबोरिया फेवर्स रिंगवर्म ऑफ स्काल्प और बियर्ड विथ एबेंडेंट स्केल्स. इतना ही है सर बोरिक में. थैंक यू सर फॉर पॉइंट ऑफ व्यू. तो पैथोलॉजी मैच हो रही है रेमेडी से.
पैथोलॉजी तो मैच हो रही है सर, आप मैजिशियन हो, कैसे पहुंचे मेरे को तो अभी तो कुछ नहीं समझा। सच बोलता हूँ, जो सच है वो सच है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा मैं कटेरे में खड़े रहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को नहीं समझा। सर ये ऐसा है ना कि काय बोलतो मग मराठीतली म्हणे. म्हणा काय म्हणायचं ते म्हणा. एका दिवशी शेजारी गेली महाशिवरात्री, दोघी उपाशी मेले. तसंच झालं ते. फर्स्ट थिंग यार, हाँ बोलिए मैडम, मैंने सुना नहीं. हाँ हेलो सर. हाँ ये स्कैंडियम लग रहा था, काली या स्कैंडियम, काली से भी ज्यादा स्कैंडियम लगा क्योंकि उसमें डाउट बहुत था. काली सेकंड ऑप्शन था, लेकिन स्कैंडियम में ब्रीदिंग, कॉन्फिडेंस कम होना और फेल्यूर का इनसिक्योरिटी और पोस्टपोनिंग, ये सब लेने के बाद है ना रिंगवर्म माइजम लेके वो स्कैंडियम बहुत श्योर लग रहा था, डीडी में काली लगा. स्कैंडियम और ये डिफरेंस कैसे करेंगे फिर सर? स्कैंडियम कॉलम 3 काली में आता है ना मैम, रिंगवर्म माइजम एक्चुअली काली सेल्स में है. सर ये भी दिखाता है कि स्कैंडियम भी रिंगवर्म ही दिखाता है. हाँ हाँ ठीक है, स्कैंडियम कॉलम 3 में है ना. सर तो कॉलम 3 में क्या होता है कि दे गो अहेड and then come back, means in his daily life he would start learning new course, कि कहीं पे NIIT का कोई कोर्स कर लिया, अपटेक का कोर्स कर लिया, कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन किया जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है. वो 2-4 दिन जाएगा, फिर बोलेगा नहीं छोड़ दो यार, इसमें मजा नहीं आ रहा, इट इज नॉट फ्रूटफुल, इट इज नॉट यूजफुल, ऐसा करके वो कोर्स छोड़ देगा. काली में क्या है, ग्रुप को मिलेगा तो मुझे मिलेगा, वो है ना कोई हलवा बटेगा तो सब में बटेगा, उस टाइप का फीलिंग है इसमें कि सबको मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा. दैट इज द थीम ऑफ काली. यहाँ पे स्कैंडियम बहुत इंडिविजुअल होता है, ही वांट्स, ही हैज रिसोर्सेस, उसके पास पैसे है, ही कैन गो टू द कोर्सेज, ही कैन जॉइन द कोर्सेज, ही कैन लर्न. लेकिन लर्निंग में जाते हैं, 2 घंटे का कोर्स है, हफ्ते में 5 दिन है, वो 3 दिन जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, देन सी स्टार्ट कीपिंग ब्रूडिंग, कि जा रहा हो लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं, मैंने तो ले लिया जावा प्लस प्लस, लेकिन अभी तो C++ की डिमांड है. इस तरीके का खेल उसमें रहेगा कि मैं जावा करूं या C++ करूं. इस तरीके का जो डायलेमा है ना, दैट विल यू सी इन द कॉलम 3 विच इज प्रेजेंट इन द एल्यूमिनियम आल्सो. ये सर वही, वो करूँ या ना करूँ, मतलब वो इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर जॉब नहीं मिला तो मैं ये बिजनेस करूंगा, ये थॉट करके मैं स्कैंडियम में गई सर. नहीं नहीं, बिजनेस उसको क्यों करना है, बिजनेस उसको ये इसलिए करना हुआ है तो क्योंकि रिटर्न नहीं है ज्यादा, ऐसे उसको लग रहा है. कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका अगर रिटर्न नहीं मिलता आपको तो व्हाट यू फील. चेंज करना है. हाँ वो 3 इडियट्स में एक डायलॉग है, देखो, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में आके इंजीनियरिंग छोड़ दी, शर्मा अंकल क्या कहेंगे, वो है ना आर माधवन के पिताजी का डायलॉग. ये सर. हाँ सो दैट इज द थिंग, यू विल ब्रिंग डिसग्रेस टू फैमिली इफ यू लीव एजुकेशन इन बिटवीन. व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव. आपने अगर शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए और पैसे डूब गए, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव. आपके हाथ में थोड़ी ना है मार्केट ऊपर करना नीचे लाना, यू आर जस्ट विद द फ्लो ना. आपके अकेले के पैसे नहीं डूबते ना शेयर मार्केट में, सबके डूबेंगे या तो सबको मिलेंगे. इट इज नॉट ए इंडिविजुअल अप्रोच, इट इज अप्रोच ऑफ अ ग्रुप. जो भी होगा सबके साथ होगा. ये सर. हाँ बट आपका थिंकिंग बहुत अच्छा है, और भरत पुरोहित सर ने फर्स्ट टाइम पे रेमेडी क्रैक की थी. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर, यू आर फ्रॉम माय कॉलेज ओनली, भारतीय विद्यापीठ. थैंक यू सर, थैंक यू.
थैंक यू। चलिए, कोई क्वेश्चन है पूछिए। सर आपने सब हिंट्स दे दिए थे ऑलरेडी, ये काली का एक्सप्लेन कीजिए ना। मैं तो काली पे, मैं फोर्थ इस पे आई नहीं, फोर्थ रो में आई नहीं, मैं तो ऊपर ही थी, सेकंड थर्ड। सेकंड और रो में जो यूट्रेन एनिमल रो जो है, पे जिसको यूट्रेन स्टेट बोलते हैं, उसमें क्या है कि पेशेंट इज वेरी पैसिव। जो भी होगा मैं देखूंगा, जो भी घटता है मेरे हाथ में नहीं है। आई हैव टू जस्ट ओनली रिस्पॉन्ड, या आई एम नॉट एबल टू बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। यानी ये दुनिया मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है, क्यों प्रेशर आ रहा है, क्यों मेरी सांस घुट रही है, क्यों मुझे सफोकेशन हो रहा है, क्यों मुझे जलन हो रही है, ये समझ में नहीं आता। दैट इज सेकंड रो। थर्ड रो में क्या है, आइडेंटिटी है, लव, केयर, अफेक्शन। मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ वजूद है, दैट कम्स इन रो 3। और रो 4 में क्या आता है, करियर है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, फैमिली है, होम है, हाउस है। राइट। तो ये क्या सेट करना चाहता था, यही नहीं हाँ? समझा। काली क्या ग्रुप जो है वो इनका उनको स्टेबिलिटी चाहिए, राइट? तो दे काली ग्रुप को स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि उनके पास आउटर लेयर में एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, और वैलेंसी कितनी रहती है, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, सॉरी। मेरे ख्याल से शायद वैलेंसी रो 4 में 18 रहती है शायद, आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग करेक्टली। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है और आपको चाहिए और 17 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने में। आप देखो कितने इनकम्प्लीटनेस रहेगा इनमें। काली में 19 है, 19 है। हाँ, तो एक तो देना 2, पड़ेगा। 8, 8 और 1 बच रहा है। हाँ, तो एक ही है ना सिर्फ, तो अगर कंप्लीट होना है तो और 17 चाहिए। तो सो मच इनकम्प्लीटनेस। एंड दे, उनका ऐसा है कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मेरे साथ जो ग्रुप में है उनको भी वो चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप में मिलेगी तो मुझे भी जरूर मिलेगी। पर इसकी एश्योरिटी है कि सिर्फ मुझे ही मिलेगी, सिर्फ मुझे ही चाहिए। ये जब आएगा तो आप स्कैंडियम के आगे जाओगे, थोड़ा वैनेडियम पे जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबको जो एजुकेशन जो है वो अगर कॉलेज में अच्छी तरीके से होगा तो सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो दैट इज द डिपेंडेंसी ऑन द ग्रुप। आ रहा है समझ में? ये सर, मतलब ग्रुप में सबको मिला तो मेरा फायदा होगा, वो काली होगा, और इंडिविजुअल बेसिस में आगे जाके स्कैंडियम पे जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल बेसिस पे क्या बोलेगा स्कैंडियम में कि मैंने कॉलेज में हूँ, कॉलेज तो डफर है, वो तो प्रोफेसर सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन मैंने सर बाहर जाके कोई कोर्स ज्वाइन किया है, या मैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स सीख रहा हूँ, या मैं इथिकल हैकिंग के कोर्सेस ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसे लगता है कि सर कोर्स करने के बाद मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दैट डायलेमा इज देयर आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे डायलेमा है ही नहीं, यहाँ पे श्योर शॉट है कि मिलने वाला ही नहीं है। एंड ही इज ब्लेमिंग कॉलेज। और जो उसकी सेंसिटिविटी है कि जो उसको महसूस हो रहा है वो बाकी बच्चों को नहीं महसूस हो रहा, और उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। कॉस्टिकम रहता तो क्या करता है यहाँ पे, वुड हैव कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक, वुड हैव गिवन द एप्लीकेशन कि आप ये सब चीजें करो हमारे लिए, हम लोग कर नहीं पा रहे। दैट वुड बी द कॉस्टिकम देन, कि वो प्रिंसिपल के पास जाएगा, उनको बोलेगा कि अर्जी है, हमारे करियर एकेडमिक्स में ये सब सिखाते हैं लेकिन इसका अभी नाउ आउटडेटेड है, आप हमें ये सब चीजें सिखाओ, एटलीस्ट यू शुड अरेंज गेस्ट लेक्चरर्स फॉर दिस। देन ही इज फाइटिंग फॉर द ग्रुप। वो कॉस्टिकम में आता। अगर उसका कोई दोस्त है बहुत अच्छा, बहुत नजदीक वाला, अगर वो चुप्पी से कोई कोर्स उसने कर लिया और बाद में उसको 3 साल के बाद पता चले कि अरे उसने तो एआई के बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, ही वुड हैव फील डिच।
बाय द फ्रेंड, देन फिर काली बाइक्रोमियम आता था उसमें। तो इसको क्या फील हो रहा है सर? व्हाट इज ही मिसिंग इन विथ हिज ओल्ड ग्रुप? क्या मिस कर रहा है? मिस वो कर रहा है कि जो कोर्स चल रहा है, जो एकेडमिक्स है, दे आर नॉट यूजफुल एंड ही कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, दैट इज वाई इज काली। उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है, ऐसे उसको लग रहा है। हालांकि आप लोग, इवन यू आर एडमिटेड इन द कॉलेज, आप लोग बाकी के बाहर जो इवनिंग टाइम है उसमें कोर्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्सेज। कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी जब कॉलेज में रहते थे इवनिंग में हॉस्पिटल करते कि नहीं करते हैं, राइट। तो दैट इज हाउ ही हैज टू प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। बट रादर देन ही इज सेइंग कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अभी होगा कि नहीं होगा क्या मालूम, ही जस्ट कीपिंग ब्रूडिंग है, वो सिर्फ बैठा है। वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए लाइफ में, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। Okay, he wants to create, but he is not able to take a Yes, step. So it he's is why, stuck in that is why one place. he is in That column is one. why he is in column one. Yes, अगर वो got कल it. के रहता तो क्या करता वो, कि मुझे कोर्स करना है, कोर्स की फी 10,000 है, करना है। लेकिन घर वाले बोल रहे 5,000 ही हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, दैट इज कलक्रिया। राइट। लिमिट में रहेगा, करने की कोशिश। हेलो यस हेलो, गुड मैम, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर इसमें जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो मतलब करना चाह रहा है बट वो कर नहीं सकता, तो सर उसके पीछे के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लाइक जैसे सर जैसे मतलब मैंने सोचा कि अगर कोई फीमेल पेशेंट होती तो उसके बैक ऑफ द माइंड ये चलता कि वो करना तो चाह रही है लेकिन सिंस बिकॉज शी इज अ वुमेन सो शी कांट डू दैट, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या होगा सर फिर? उसमें ये होगा कि उसको हम लोग पूछेंगे व्हाट इज होल्डिंग यू। ऐसा तो है नहीं कि उसके फैमिली उसके पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रही है कोर्सेज के, या अगर सर फीमेल रीजन यही रहती तो बता रही हूँ। हाँ, अगर शायद ऐसे रहता कि फीमेल रात को कोर्स के लिए मत जाओ, क्लासेस 8 बजे छूटते हैं, इतना लेट आप घर पे नहीं आ सकते हो, ऐसा कुछ रहते तो बात अलग रहती। लेकिन इसके मामले में कुछ है ही नहीं। ही इज अ मेल, ही ड्राइव बाइक, ही कैन गो एनीवेयर। और कौन रोकेगा आज के जमाने में, इफ दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। हाँ, अगर वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो बात अलग रहती है। हाँ बोलिए। लेकिन सर उसमें अगर पेशेंट के अपने ही माइंड में ये एक कहते हैं ना मॉर्बिडिटी जैसे बोलते हैं, पेरेंट्स का ऐसा कुछ नहीं है बट पेशेंट के अपने माइंड में ये है कि वो रेस्ट्रिक्शन जो हो रही है कि उसके जेंडर की वजह से वो नहीं जा पा रही बाहर कहीं भी, लाइक ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसे वो, तो उसमें मैं पूछ रही हूँ सर उसमें क्या होगा सर? उसमें ये होगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड हर सेंसेशन, व्हाट डज इट मीन बाय जेंडर for her, and it can be then it not just the Kali, it can be anything. If she's saying ki it has been restricting, I'm claustrophobic, this total gender bias is suffocating me, it can be nitrogen, it can be bird remedy, it can be anything then. So sensation is never dependent upon the situation. You create your situation in life due to your sensation. Okay, sir. Even though there are many, we have seen in our India, there are many females who became leader, who became IAS, IPS, even though there was gender bias, even from the northern states also. So जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो he will start putting the reasons. But वो reasons क्यों आते हैं? Because it is his inner sensation is like that. कि ग्रुप में करेंगे, हो सकता है उसके अगर 4 दोस्त ने कोई कोर्स ज्वाइन किया तो ये भी कोर्स ज्वाइन करेगा 5वां, बट इनिशिएटिव जो है वो ग्रुप ने लेना चाहिए। ओके सर। हम लोग जब पिकनिक प्लान करते हैं ना,
तो ऐसे दो लोग रहते हैं, वो आ रहा है क्या, कॉफी वो आने वाला है क्या, श्योर है क्या? गिर जाएगा बे अल्टुआ, बदमाशी कर रहा है, गिर जाओगे। सर नहीं गिरेगा वो, डोंट वरी। तो इस हालत में ऐसे होता है कि आपको जो करना है, एंड इफ यू आर रेडी टू डू, यू कैन कम आउट ऑफ दिस, अदरवाइज यू पुट रीजंस। अगर मुझ में ताकत ही नहीं है तो आई विल फाइंड सम रीजन आउटसाइड इन द वर्ल्ड which will justify my inner sensation. So let's take an example कि ऐसा है कि मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम एंड आई नो फ्रॉम माई हार्ट कि आई एम नॉट दैट मच कैपेबल। और घर वाले पैसे भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं बोलूंगा क्या घर में आके, इफ आई एम नॉट एबल टू गेट द पोस्ट? वहां पे सब वशीलीबाजी चलती है, वो IAS के लड़के को इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, हम इस कास्ट से है इसलिए हमको सिलेक्ट नहीं करते, हम इस स्टेट से है इसलिए सिलेक्ट नहीं करते, हम इस रिलीजन से है इसलिए सिलेक्ट नहीं करते। देयर विल बी द वेरियस रीजंस टू जस्टिफाई माय इनर सेंसेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मुझे ये समझना है कि इनको आखिर मेंटल लेवल पे क्या हुआ कि स्किन में पीलिंग ऑफ का समस्या आने लगा, वो चीज जरा समझाइए सर अच्छे से। फीलिंग ऑफ क्यों हो रहा है? ही इज नॉट एबल टू सिट। इसका मतलब ये है कि जो कॉलेज में जाके उसको बैठना है, या जो कुर्सी पे जाके, इंजीनियर कुर्सी पे जाके बैठना है, ही इज नॉट कैपेबल ऑफ सिटिंग इन दैट चेयर। अगर मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, सेकंड ईयर कर रहा हूँ, आप सडनली बोल दोगे कि हॉस्पिटल आपको संभालना है, विल आई बी एबल टू मैनेज द हॉस्पिटल? नो सर। अगर समझो मैंने 4th ईयर कंप्लीट किया है, इंटर्नशिप भी कंप्लीट की है, एंड आई एम इन होम्योपैथिक हॉस्पिटल, एंड इफ यू गिव मी CMO of allopathic hospital, will I be able to manage the CMO of allopathic hospital? No. Every time I have to rush to the senior, sir देखो इसको उल्टी आ रही है, इसको कन्वर्जन आ रही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, what should I do? Should I do for BSL? Should I intubate him? फिर सर वो झटके आ रहे तो मैं कैसे इंट्यूबेट करूं? All these things will come now because I am inexperienced person in that field. Then means I am dependent upon the group. If somebody should tell me what should I do. And he cannot tell because he had to choose his own college na. Because merit for university colleges is very high than deemed university. And if you have been selecting university college and if you are getting admitted, means you have a caliber to go for deemed university also. But what he think कि अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाता हूँ, गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज में, तो मेरे प्रॉस्पेक्ट्स ज्यादा रहेंगे। लेकिन जब वो एंटर हुआ तो उसको एहसास हुआ कि जो उसने सोचा था वैसे सिचुएशन है ही नहीं यहाँ पे। हालांकि अगर सिचुएशन है तो ही कैन कोप अप विद द कोर्सेस, मेनी पीपल आर डूइंग इट, बट रादर देन ही जस्ट कीप ब्रूडिंग, दे हैव नॉट टेकन एनी एफर्ट टू कम आउट ऑफ दैट स्टेट। सर आपने जो भी केस में वो लेवल्स बताए थे, एक बार लेवल्स बता दीजिए क्या होता है, तो समझ नहीं आया, फर्स्ट टाइम सुना। मैं लेवल का चार्ट बाद में डालता हूँ, मैं हर विषय के बाद डालता हूँ, वो भी डाल दूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर और अभी कोई रुब्रिक सवाल? वाइज देखा, हेलो सर। हाँ हाँ सर, रुब्रिक वाइज देखा जाए वो ब्रूडिंग नहीं छोड़ सकते थे,
फिर पोस्टपोनिंग एवरीथिंग नहीं छोड़ सकते थे। फिर ये काली तक पहुंचना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए स्कैंडियम सब कवर कर रहा था, वही उसका फील ही मिस हो रहा था। अभी आपने बताया इसलिए समझ में आया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं भी पहुंचे ना, ये रीकेस्टेकिंग है। उसका फॉलोअप ऐसा था कि फर्स्ट 2 months उसको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं था। The skin was peeling, there was a scaling, there was a bleeding. After 3rd month, he started improving. क्योंकि वो रूब्रिक वाइज देखा जाए तो सॉरी सर, रूब्रिक स्कैंडियम ही आ रहा था, मायजम भी, रूब्रिक वाइज भी, और चाइल्डहुड फेज मतलब उसका जो डिपेंडेंसी, सो थोड़ा सर सीखना पड़ेगा। और थोड़ा नहीं, सुमित बहुत सीखना पड़ता है सबको। मैं भी रोज सीखता हूँ। हुसैन सर रोज हमको हाँ, बहुत सिखाते हैं। डिफिकल्ट है। आपसे हुसैन सर से आप सीखेंगे सीखो, सर। हुसैन सर बहुत अच्छे सिखाते हैं। अरे साहेब नहीं, महाडिक सर का बहुत अच्छा केस हुआ है स्कैंडियम का। अगर सुने तो मैं मुंह देखेंगे ना तो आप देखो कंफ्यूजन कैसा था वो लड़के को। एग्जाम दे रहा था वो लड़का, कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन हॉलमार्क रहता है कॉलम 3 का ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, उसको डिसाइड नहीं कर पाएगा, डिसीजन ले नहीं पाएगा। यहाँ पर डिपेंडेंसी ज्यादा थी, यहाँ पर डिसीजन के लिए डिपेंडेंसी नहीं थी, चॉइसेस को लेकर डिपेंडेंसी नहीं थी। यहाँ पर डिपेंडेंसी किसके लिए थी? तुम रहो साथ, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा कुछ नहीं है। ये कॉलम उनका फील था, इसलिए आप शायद स्कैंडियम से काली पे नहीं पहुंच पाए। हाँ ऐसा सर, वो क्रक्स। बहुत श्योर लग रहा था कि ये स्कैंडियम ही है। हाँ, फिर बाद में अभी पता चला कि ये नहीं है। अब इसके बाद आप अगर स्कैंडियम का आपको कॉलम 3 का एग्जैक्ट फील चाहिए ना, तो आप मार्डिक सर की केस देख लेना। सर ने मस्त पढ़ाया था। और मेरी कौन सी केस थी स्कैंडियम की? आपकी थी ना सर स्कैंडियम की केस, आपने कहीं पढ़ाया था? नहीं 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 नहीं, मेरा वेनेडियम का केस था वो, स्कैंडियम नहीं था सर। ओके स्कैंडियम मेरे पास रेमेडी है ही नहीं। आएगी सर, डोंट वरी। नहीं, वो रेमेडी आएगी वो बात अलग है, लेकिन मेरे पास ना तो केस है ना तो मेरे पास दवाई है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए और गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरे पास वेनेडियम के 2-3 केसेस थे सर। हाँ हाँ, दिस इज द कंफ्यूजन ऑफ कॉलम 3, डोंट वरी सर। ये देखो वाट लगाए हमारी। स्कैंडियम के बाद है कॉलम 5 है वो। नहीं, इसके बाद आपके साथ बात नहीं करेंगे। हमको किसी ना किसी कॉलम में बिठाओगे और हवा में उड़ा दोगे। सर सुनीता मैडम आपको समझा अभी व्हाट इज द कंफ्यूजन ऑफ कॉलम 3? सर स्कैंडियम क्लियर हो में, गया था कि सर बहुत बढ़िया लर्निंग हो गई। स्कैंडियम में हाँ, बोला ऐसा विजिटा है मैडम। कि मतलब टास्क चूज कर लिया बट थोड़ा कंफ्यूजन है कि किस तरह से करूँ, ऐसा है क्या? इस बंदे में तो वहां पे टास्क क्या चूज होता नहीं है, किया। स्कैंडियम में क्या है एक्चुअली कि मुझे क्या करना है मुझे मालूम है। हाँ राइट, मैं एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग बन रहा हूँ और इंजीनियर बनने के बाद मुझे आईटी में इथिकल हैकिंग करना है, या आईटी में जाके मुझे कोड्स लिखने हैं। तो इट इज वेरी सर्टन कि कोड्स लिखना कॉलेज में बहुत प्राइमरी है आज की डेट में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर सम एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्स। वो कोर्स में करने लगूंगा, थोड़ा आगे जाऊंगा, लेकिन समझिए यार इसका तो कोई यूज नहीं है, ये तो मुझे आता है, ये बहुत नया है, ये करेंगे कि नहीं करूंगा मैं, और ये करने के बाद मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मैं कोडिंग करूं। लेकिन आज देख रहा हूँ एआई आ रहा है, तो कोडिंग की जगह पे मैं अगर एआई का कोर्स करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट डायलिमा रन्स इन कॉलम 3। यस यस, तो इस बंदे में ऐसे कुछ भी नहीं था, कोई कंफ्यूजन ही हाँ, नहीं कुछ था, भी नहीं था ना। बेसिकली आड़ा था इसका, करेक्ट। हम्म। और कोई सवाल? Anybody has any doubt? हेलो
हाँ यस ना। हेलो सर, अगर यही वाली सिचुएशन आप केस की बता रहे हो, तो यही वाली सिचुएशन में अगर प्लांट रेमेडी होती तो कैसे डिफरेंशिएट करते? कौन सा रेमेडी? सर प्लांट की कोई होती है अगर प्लांट ग्रुप की? प्लांट ग्रुप की रेमेडी में क्या आता कॉलम 4 में कि द बिहेवियर ऑफ माय प्रोफेसर, बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, बिहेवियर ऑफ माय फैमिली इज अफेक्टिंग मी। वो इस तरीके से बोलता कि मुझे करना है लेकिन ये लोग मुझे करने नहीं देते और ये नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी डिब्बे में बंद हूँ, या इससे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर का नॉलेज सूखने लगा है, या इस तरीके से बात करते कि मैं फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड। तो ये सब वर्ड्स आते हैं उसमें प्लांट केस में। दे आर वेरी सेंसिटिव टू द बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल नॉट टॉक अबाउट द करियर, ही विल टॉक अबाउट द फैमिली, के फैमिली में एक दूसरे के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, इस तरीके की बात करेगा। जो माता जी और पिताजी का झगड़ा होता है, इट इज अफेक्टिंग मी, इट इज अफेक्टिंग माई करियर, इस तरीके से वो बात करता। ओके सर। और सर अगर एनिमल होती तो कैसे बोलता? एनिमल होता तो ऐसे बोलता कि हाउ कैन दिस प्रोफेसर not allowing me to do the course? It is my right. I can do any course after college hours. Who is he? He is restricting me. तो उसको क्या लेने देना है what I am doing after the college hours? उसको अपने एग्जाम से लेना देना है। मैं एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाता हूँ, बात खत्म। Who is he? आपको एनिमल केस कोई देखना है क्या? यस सर। नेक्स्ट टाइम करता हूँ मैं। गुगली महाराज। अरे सही में एनिमल का केस डालूंगा मैं। गुगली महाराज की जय। सब कुछ लिखने के बाद पूछते हैं किंगडम कौन सा है भाई। अब तो मैंने लिखा था ना। तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिस्क्रिप्शन। सर बोलेंगे, कुछ भी बोल सकता कोई भी आदमी टू जस्टिफाई इट हिमसेल्फ। यू शुड रीड द बुक्स। प्रवीण सर चाहते थे कि पिटारस में कुछ नया निकले, अगली बार आप पिटारस में से एनिमल निकाल दो कोई अच्छा वाला। आपके स्टाइल वाला एनिमल रेमेडी आपकी का केस खासियत। मैं प्रेजेंट कर दूंगा सर। हाँ जी एनिमल रेमेडी का केस मैं प्रेजेंट कर दूंगा। यस यस यस, चलो आई एम फ्री फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू। तो सर आप प्लांट रेमेडी का कर दीजिएगा। जी मैम, एक्चुअली आपने अभी रिसेंटली ही ग्रुप को ज्वाइन किया है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के हैं। ऑलरेडी बहुत मटेरियल है हमारे ग्रुप में, सर की केसेस भी हैं, बहुत सारे केसेस हैं। आप शिंदे सर के नाम से सर्च करेंगे मैम, तो हर किंगडम के केस शिंदे सर के ही मिल जाएंगे आपको। ओके सर, ओके सर। हाँ, और उसके बाद सर, सर ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है रिटर्न में, बहुत मटेरियल मिल जाएगा। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी जी मैम। जी सर और रूब्रिक्स में देखेंगे तो काली सेल्फ सेंसिटिव टू क्वारलिंग, एल मीन्स फ्रॉम क्वारलिंग और एवर्जन टू क्वारलिंग में है। काली सेल्फ का एक्चुअली कोड है, क्वारलिंग से उसको प्रॉब्लम होते हैं, वो बीमार तब पड़ता है। दे आर वेरी गुड हस्बैंड्स एक्चुअली, यहां शॉर्टन सर ने लिखा है। दे ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजिंग विद वाइफ। काली सेल्फ बीमार इसीलिए पड़ता है कि वो रिएक्ट नहीं होता है। फाटक सर ने लिखा है, देखो, ये रिएक्ट नहीं हो पाता है, किसी भी सिचुएशंस में झगड़ा नहीं कर पाता है वो, इसलिए बीमार गिरता है काली सेल्फ। सर दिस इज द स्टेट ऑफ ऑल हस्बैंड सर। आप मेरे साइड आ जाओ। हम लोगों की यही व्यथा है सर।
आज रात सब हम गलत लोग है, इसी गलत है, काली इस पे नहीं चलते। काली सल्फ का पश्चिम 200 महाराष्ट्र endorsement है, पश्चिम महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र है, झुकेगा नहीं साला। पश्चिम महाराष्ट्र है। यहाँ पे आपके कॉलम में नहीं बैठूंगा सर मैं। मुझे मैडम से पूछना पड़ेगा कितना फर्स्ट और ये क्लास है बात सिर्फ क्लिनिक में हूँ करके बोल रहा हूँ, घर पे होता तो नहीं बोल पाता। वही तो, घर पे बोल पाता, ये अभी क्लिनिक में हूँ करके आवाज। हाँ वही बोल रहे, एक दोस्त लिया जाए। या हर हस्बैंड आते ना उसके काली सल्फ देना चाहिए भाई। तू बात कर, तू एक्सप्रेस कर, तुझे घुटन हो रही है अंदर से। देखो उस जमाने में भी मालूम था कि हस्बैंड लोगों की क्या अवस्था होने वाली है, इसलिए फाटक सर ने लिख के रखा था। एक्चुअली वो जो जमाना था उसमें मेल डोमिनेंस बहुत था, बट दीज आर द लीजेंड्स हु कैन फोरसी द फ्यूचर। लेकिन सर आज की केस तो किधर भी सरप्राइज नहीं थी, आज की केस तो कहीं पे भी एल्विस फ्रॉम क्वारलिंग नहीं थी, कहाँ पे भी क्वारलिंग का कोड दिखा नहीं। सहरान सर, कुछ भी नहीं था नमस्ते सर। actually। कुछ खाली बोलूं? का और सब। हाँ हाँ काजल मैडम, सर हमको रूब्रिक से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सर जो 1.5 साल से सर को रूब्रिक में डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर नहीं हमको सर, बहुत नहीं संभाल नहीं रहे सर बोले कि सुनना पड़ता है, लेट हिम एक्सप्रेस, वरना वैसा वाला चीज हमारे आज की केस हैं। में हाँ, नहीं था। लेकिन ऐसा हम लोग आज तक वो एक ही फैसेट सीखे हैं ना, हाँ ऐसे हम लोग एक ही फैसेट सीखे हैं। सर 1.5 साल से हमको हैमर कर रहे हैं कि बाबा लो इसमें रूब्रिक में, इसलिए इसलिए बोला मैं कुछ नहीं। एक्चुअली बेसिक रेफरी खोलना ही बंद कर दूं। काजल मैम बेसिक वजह उसकी ये है ना कि डिपेंडेंसी एवर्जन क्यों है मालूम है कॉग्निशन से, कि तुम डिपेंडेंट रहते हो किसी पर भी, वो आपकी डिपेंडेंसी दिखाता है। अगर आप में जैसा कि मैग्नीशियम की डिपेंडेंसी होती है, मैग्नीशियम भी एवर्जन में क्यों भाई, कि मैं तुम पर इतना डिपेंड हूँ कि अगर मैं तुमसे झगड़ा कर लूँ तो मैं तुम्हारा जो सपोर्ट है मेरा छूट जाएगा, जो हमारा हारमोनी है वो छूट जाएगा, फिर फैमिली छूट जाएगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। ये डर है ना, ये डर के वजह से शंकर सर ने भी लिखा है, शायद सोल ऑफ रेमेडीज में आप पढ़ लेना कि काली का डर क्या है। एक्चुअली डर सबसे बड़ा ये है, उसका बुनियादी डर कि अगर झगड़ा होगा तो फिर मेरा सपोर्ट छूट जाएगा, और वह कॉलम 1 का फीलिंग आता है फिर हमको। यहाँ से हम उठा सकते हैं, इस रूब्रिक के हाँ माध्यम से अगर हम सीखेंगे तो ऐसा उठा सकते हैं कि डर क्यों है हाँ भाई, क्या क्या मजबूरी क्या है तुम्हारी, झगड़ा करने से मजबूर क्यों है तुम इतने। हाँ, उसने बोला कि मुझे मुझे मेरे फ्रेंड्स नहीं हाँ छूट जाए, हाँ आई डोंट हाँ वांट टू बी अलोन, हाँ वो सब बोला। वो लेकिन मतलब कहीं पे भी क्वारलिंग का जस्ट मुझे नहीं दिखा इस केस में, ये मैंने खाली ये इतना ये बोला। ये ये कैटाइन की मतलब एक्चुअली एक खासियत है। कैटाइन इस तरह से, कैटाइन की खूबसूरती यही होती है कि भाई आप कुछ महसूस नहीं करते अपने अंदर, और आप हमेशा चक्कर में रहते हो। जैसा सर ने बोला ना, उसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसको पूरा करना है किसी से भी, कैसे भी तरीके से, तो हाँ वो आयनाइन को ढूंढता है। फिर सल्फर का पार्ट जब मिल जाता है तो उसका सल्फर का जब केमिकल फॉर्मूला है तो उसकी आयनाइन की जो एक्शन है उसको बॉन्ड फिक्स कराती है। फिर वो जब काली सल्फर वैसा बन जाएगा ना तो वो बहुत ज्यादा अपने अंदर महसूस करेगा, ग्रेसफुल और अच्छा चीज, सब रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें। और ये 24/7 चलते रहता है। ये जो ऐसे कॉम्बिनेशन सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये फीलिंग चलते रहेगा। एक बार सर ने सिखाया था हमें इसके टाइम पे, लास्ट केसेस में सिखाया था कि किस तरह से केमिकल की वजह से उनके अंदर ऐसा हलचल होते रहती है। काजल मैडम, हाँ सर, ये लड़का कितने साल का था? 20 years ओनली। हाँ, तो 20 साल पे हुसैन सर, 20 साल पे शिंदे सर, 20 साल पे मैं, हम लोग कहाँ भी, हम लोग को कॉरल दिखता ही नहीं था ना, कौन हमको डांटता था? ये आगे चल के आपके पास आता था 35 पे 40 पे, तो आपको वो दिखता था कि बाबा सामने कॉरलिंग तो होना चाहिए ना, लेकिन अगर सामने कॉरलिंग है ही नहीं तो कॉरलिंग दिखेगा कैसा हमको? ये बोलना चाह रहे कि हम कहीं से भी उठा सकते हैं अगर हम पीएम से और से जाएंगे तो। हाँ सर। कॉरलिंग तो उसकी लाइफ में बाकी है ना, शादी तो करने दो उसको। हाँ हाँ सर। उसको देखो कॉलम 5 और कॉलम 6 की बीवी मिलेगी।
जो who will dominate her, who will dominate him. ये होम्योपैथ वाले का श्राप है। यही आशीर्वाद दे के जाओ, यही आशीर्वाद देते रहो, हाँ यही आशीर्वाद देते रहो। उसकी शादी होने का देखा था मैं आपको, ठहरो। आपको अट्रैक्ट ईच अदर सर। वो तो है, आप करोगे ही, वही करोगे उसको। देखिए ये बढ़िया था, इनोसेंट सबसे आदमी बढ़िया को यही था। बहुत नहीं, उसकी बीवी किस इससे मिलेगी, ये बढ़िया था, बहुत बढ़िया था इसमें। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ, हम लोग म्यूट हो जाते। नहीं सर, Shankaran sir said in one of his lectures कि homeopaths make really good matchmakers. We make the best matchmakers बोले थे सर ने। इसीलिए तो मैं मैरिज काउंसलिंग करता हूँ ना। नहीं, इसीलिए तो अभी सर राशि चक्र के जैसा हम लोग का रेमेडी चक्र करके एक ये करने वाले, शो करने वाले। कौन सी रेमेडी की, किसके साथ शादी होनी चाहिए। होम्योपैथिक बोला मैडम। सर रॉ और कॉलम के बारे में जानकारी के लिए कुंडली मॅच करायच्या ऐवजी आपण होमिओपॅथिक हॉरोस्कोप मॅच करत जाऊ। करू मी शिकतोय सध्या। नेक्स्ट इयरला मी सांगेल तुम्हाला कसं मॅच करायचं ते। हाँ, कोई और बोल रहा था। रॉ और कॉलम के लिए जानकारी के लिए थोड़ा सा कुछ मटेरियल डालिएगा ना। हम लोग सर नए हैं, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कैसे पकड़ेंगे हम लोग रॉ और कॉलम। चलेगा, डाल देता हूँ सर। सुनील सर, जितने भी यहाँ पे केसेस हुए हैं ना शशि सर के अब मिनरल किंगडम के बारे में, तो सर ने यहाँ पर ना इस यहाँ पिछले ग्रुप में अपने जितनी बेसिस है उनकी अबाउट द मिनरल किंगडम, तो उन्होंने बहुत सारा बताया है और लिख के भी मतलब केस में प्रेजेंट किया है कि किस तरह से पहचानना होता है रोज को, कॉलम्स को। और आई थिंक माधुरी मैम के भी कुछ केसेस हुए हैं IHF में उस पीरियोडिक टेबल के लिए, तो वो भी देख लीजिए। और प्रवीण सर का भी बेसिक आइडिया ऑफ पीरियोडिक टेबल उन्होंने लिया था अच्छा खासा कॉलम एंड रोज के बारे में। तो इसमें आप अगर डाटा बैंक में जाके देखेंगे ना तो काफी मिल जाएगा आपको मटेरियल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कोई बोलना है कुछ? हाँ, वो श्रावंती मैम थे, वो ऐड करना चाहते थे। मैम प्लीज कीजिए आप, अगर मैं सही से आपका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हाँ, ऐड कर लिया उन्होंने, ऐड कर दिया। ओके जी सर। थैंक यू शशि सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, श्रावंती थैंक यू। मैडम, श्रावंती मैडम को कुछ बोलना है, बोलिए। बोल दिए ना उन्होंने। बोल दिया वो सर। बोल दिए सर। बोल दिया। कहो ना कहो। इतने में बोल दिया। इतना ही बोलना था सर। इतने में समझ जाओ ना। ऐसा बोलना था उनको। नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। शंकरन सर का वो याद आ गया था, वो शेयर कर रही थी बस। क्वेश्चन तो होना चाहिए साथ में कुछ। हाँ ना, मुझे रोका लग रहा है सर। आज के लिए नहीं है कुछ भी। आधा घंटा और आगे जाएगा सेशन फिर। जी ओके। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं तो वी विल वाइंड अप। अगर है तो फिर पूछिए अभी, नहीं तो फिर ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिए, आई विल आंसर। जी सर। प्रवीण सर नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू शशि सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू हुसैन मौलानी सर और सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स
तो आज की इस शानदार वेसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर। बहुत ही बढ़िया केस था सर। और हम जो माइंड मेथड में प्रैक्टिस करते हैं, हमको भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है रेमेडी को समझने का। उससे और एक्सपांड होती है हम लोगों की जो नॉलेज है उस मेडिसिन को लेके। तो 2 दिन का आप समय देते हैं इतना डिटेल में, इसलिए कि सबको ये अच्छे से समझ आए कि हम लोग उसको प्रैक्टिस में अप्लाई कर पाए। तो इसके लिए हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू ऑल। जी सर। थैंक यू सर। थैंक